फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इवॉल्व हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालने के लिए, लेकिन आज इसका मैथ्स की हर एक ब्रांच में, ऑलमोस्ट साइंस की सभी ब्रांचेस में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में और वेरियस अदर डिसिप्लिन्स में काफ़ी यूज़ है। आई सजेस्ट कि जब आप ये लेक्चर देखें तो नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि कितनी भी शार्प मेमोरी हो, लिख लेना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या है। तो ए मैट्रिसेस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रोज और कॉलम्स। फॉर एग्जांपल्स, these are matrices. So here numbers are arranged in rows and columns. रोज बोले तो जैसी हमारी नोटबुक और कॉपीज में लाइंस होती हैं, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। कॉलम्स, इंग्लिश में खंभे को कॉलम भी कहते हैं, तो कॉलम्स का क्या मतलब है इधर? वर्टिकल लाइंस। तो दे आर 3 कॉलम्स। सो दिस मैट्रिक्स हैज 2 rows and 3 columns. Matrices are represented by capital letters. तो मैं इसको A से डिनोट करता हूं और इसको B से डिनोट करता हूं। Numbers or functions in the matrix are called elements of the matrix. A11, it means element of the matrix, element of the first row and first column. जैसे मैट्रिक्स ए है, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? दिस इज 1। A13, इट मीन्स, कैन यू गैस कौन सा एलिमेंट हुआ ये? एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इट इज द एलिमेंट टू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। And can you guess what is the element A23? Element of the second row and third column. This is the element A23. In general, Aij represents element of the ith row and jth column. One thing is order of a matrix. What do you mean by order of a matrix? Number of rows by number of columns. जैसे मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है A2/3। मैट्रिक्स बी का क्या ऑर्डर है? कैन यू गैस? इसका ऑर्डर है 3/3, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ऑर्डर हमें 3 बातें बताता है, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं और इन टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। नाउ लेट अस सी सम स्पेशल मैट्रिसेस। Row matrix. It has only one row.
For examples, what is the order of this matrix? Order of this matrix is 1/3. एंड व्हाट इज द, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक रो है और 3 कॉलम्स हैं. दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3. सिमिलरली, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? इट इज 1/4, क्योंकि इसमें एक रो है और 4 कॉलम्स हैं. Second is column matrix. Can you guess what is a column matrix? I think now you can guess. It has only one column. For example, these are column matrices. Can you guess what is the order of this matrix? इस मैट्रिक्स में 4 रोज हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 4/1. कैन यू गेस व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? इसके अंदर 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/1. थर्ड इज जीरो मैट्रिक्स. It is a matrix whose all the elements are zeros. For examples, these all are zero matrices. जीरो मैट्रिक्स को, किसी भी जीरो मैट्रिक्स को O से दिखाते हैं. Square matrix. It is a matrix in which all the rows, in which number of rows and number of columns are equal. For examples, in matrix A, the order is 2/2. In matrix B, as it has 3 rows and 3 columns, the order is 3/3. A matrix of order 2/2, a matrix of order 2/2 can be called a matrix of order 2. Similarly, a matrix of order 3/3 can be called a matrix of order 3. In general, a matrix of order n by n can be called a matrix of order n. There is a concept attached to the square matrices only. It is
elements of the main diagonal. A11, A22, A33, etc. are called elements of the main diagonal or just diagonal elements. So in this matrix, what are the diagonal elements? 1 and 7. Because in matrix A, this is the element A11 and this is the element A22. Similarly, in matrix B, 4, 15 and 9 are called diagonal elements because it is the element of the first row first column, this is the element of the second row second column, and this is the element of third row and third column. Remaining elements are called non-diagonal elements. Note that मैट्रिसेस में जब भी डायगोनल कहा जाएगा वो केवल इस वाले डायगोनल को कहा जाएगा, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स को हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. द नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Fifth is identity or unit matrix. It is a square matrix in which diagonal elements are unity and non-diagonal elements are zeros. For examples, the diagonal elements are unity, that is 1, and non-diagonal elements are zeros. The diagonal elements are unity and non-diagonal elements are zeros. Identity matrices are denoted by I. Besides that, identity matrix of order 2 can be denoted by I2 and identity matrix of order 3 can be denoted by I3. The sixth type is diagonal matrix. It is a square matrix
in which non-diagonal elements are zeros. For examples, this matrix A is a diagonal matrix in which the non-diagonal elements are zeros. Diagonal matrix A can also be written as the last is scalar matrix. It is a diagonal matrix in which the diagonal elements are same. For example, this is a स्केलर मैट्रिक्स. इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि S4 स्केलर S4 सेम, यानी डायगोनल एलिमेंट्स सेम है. अब जैसे कोई तुम्हें कहे कि एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट, एक 3x3 स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट A22 3 है. By this information you can generate the whole scalar matrix. Let us do some questions now. A matrix has 8 elements. What are its all possible orders? The all possible orders, you can see that 1/8, यानी सारे के सारे 8 एलिमेंट्स को हम एक रो में रख दें, या 8/1, that will be a column matrix, या फिर 2/4, या फिर 4/2. तो इस प्रकार से अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो हम उनको इन 4 में से कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. What are the all possible orders if a matrix has 5 elements? अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो कैसे लिखोगे? या तो 1/5 या 5/5. Let's do one more question. Construct a 3/2 matrix whose elements are given by Aij equals half of modulus of I minus 3j. Let the matrix be A equals, अब हमें 3/2 मैट्रिक्स बनानी है, यानी 3 रोज होंगे और हर रो में 2 एलिमेंट्स रखेंगे तो अपने आप 2 कॉलम्स हो जाएंगे. सो A11, नाउ A11 क्या होगा? हाफ ऑफ I की जगह 1 और J की जगह 1, तो I माइनस 3 इंटू 1, यानी 1 माइनस 3. इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2/2,
यानी 1, A12 हाफ ऑफ I की जगह 1 और J की जगह अगर 2 रखेंगे तो 6, सॉल्व करके आ जाएगा 5/2। A21 इसी प्रकार से क्या हो गया, I की जगह 2 और J की जगह 1, सॉल्व करके आ जाएगा हाफ। इसी प्रकार से A22 हाफ ऑफ I की जगह 2 और जब J की जगह 2 होगा तो यहाँ आ जाएगा 6, यानी 4/2 2। A31 I की जगह 3, J की जगह 1, तो 3 - 3 ये आ गया 0। एंड A32 ये आ गया A की जगह 3 और जब J की जगह 2 आया तो 6, दिस इज 3/2। Therefore required matrix A, write down straightforward, A equals 1 half 0 and 5/2 to 3/2. This is the required matrix. अभी तक हमने कुछ स्पेशल मैट्रिसेस को देखा। अब हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। Two matrices are said to be equal if they have same order and same elements at corresponding places. For example, अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x + 3 = 0 होगा, z + 4 = 6 होगा and 2y - 7 = 3y - 2 होगा। फर्दर a - 1 = -3 होगा और b - 3 = 2b + 4 होगा। इनसे हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। x आ जाएगा -3, z = 2 और y आ जाएगा -7 + 2 = -5। a will be equal to -3 + 1 = -2 and b will be equal to -3 - 4 = -7. You can calculate it very easily. One more question. Find the values of A, B, C and D from the following. We know that जब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं 2a + b = 4, call it first, a - 2b = -3, second, 5c - d = 11, third, और 4c + 3d = 24, फोर्थ। अब अगर हम पहले दो इक्वेशंस को लें तो बाय फर्स्ट -2 × सेकेंड we get 2a + b = 4 and 2a - 4b = -6। नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस, 2a से -2a कैंसल आउट हो गया, तो 10b = 5b
equals 10. That gives b equals 2. Putting b equals 2 in second equation, फर्स्ट में भी रख सकते थे लेकिन सेकंड बेटर लग रही है, तो हमें मिला a minus 2 into 2 equals -3. It implies a minus 4 equals -3. Therefore a equals 1. Therefore a equals 1, b equals 2. इस प्रकार से COD थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को लेकर भी तुम COD की वैल्यूज निकाल सकते हो. आई सजेस्ट कि जब ये वैल्यूज निकाल लो तो इनमें पुट करके देख लो कि वो इसके इक्वल आती हैं कि नहीं. जैसे कि हमने A1 और B2 निकाला, अगर मैं इसमें रखूं A की जगह 1 B की जगह 2 तो मुझे 4 प्राप्त होगा, और यहाँ A की जगह 1 और B की जगह 2 रखूंगा तो -3 मिलेगा. इसी तरह से जब COD की वैल्यूज इस प्रकार से निकालो तो इनमें रखकर चेक कर लो कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल. तो इन दोनों मैट्रिसेस की इक्वलिटी के हिसाब से 3x + 7 बराबर होना चाहिए 0 के, और इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी -7/3. अच्छा, इधर भी देखें, 2 - 3x बराबर होना चाहिए 4 के. इसका मतलब है 2 - 4 equals 3x. It implies -2 equals 3x. It implies -2/3 equals x. तो यहां से x की वैल्यू कुछ और मिल रही है, यहां से x की वैल्यू कुछ और मिल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं नो वैल्यू ऑफ x कैन मेक these two matrices equal. The last question for today. The question is, what are the all possible matrices of order 3 by 3 with each element 0 or 1? It means हम ऐसे कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं जिनका ऑर्डर 3 by 3 हो और उनका हर एलिमेंट या तो 0 हो या 1 हो. इसके लिए तुम ये फार्मूला यूज कर सकते हो कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द पावर ऑर्डर. इसका प्रूफ हमारे कोर्स के बाहर है. अब जैसे इस फार्मूले को यूज करके इस सवाल को करेंगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2, 0 और 1. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2. और ऑर्डर क्या है? 3 by 3. यानी हम 3 by 3 ऑर्डर की ऐसी 512 मैट्रिसेस बना सकते हैं जिसका हर एलिमेंट 0 या 1 हो. One more thing, matrix is singular word and the plural is matrices. ये तुमने इस सारे लेक्चर में कई जगह नोट भी किया होगा. इस लेक्चर के बाद तुम NCERT की बुक का एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हो. अगर कोई क्वेरी हो इस लेक्चर के बारे में या किसी क्वेश्चन के बारे में तो आप YouTube पर वो कमेंट्स में लिख सकते हो या किसी और तरीके से मेरे से पूछ सकते हो. गुड बाय फॉर नाउ. जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ.